This is the centennial anniversary of Einstein's birth, and tonight's recipients have taken a large step toward achieving what Einstein attempted but failed to accomplish. Nobel laureates Sheldon L. Glashow and Steven Weinberg, both of the United States, and Abdus Salam of Pakistan. I think what's remarkable is just take a look around us. We began here. And what around here is conducive to sciences, or to physics, or to sort of thought experiments? Nothing. It is a wonderfully romantic story of a young lad in a turban from a market town in the Punjab that nobody had ever heard of. This romantic story should be told to every child in the third world. Salam was clearly a prodigy. He came from a perfectly ordinary middle-class background, taught by a village school teacher, essentially. And yet, just because he had that enormous amount of intelligence and the capacity, he was able to make it big. He told me that to him the main thing about the Nobel Prize is that it would help him to attract support for his ICTP, for his institute. Well, my character is not so noble. And finally tonight, last week most of the world cheered the discovery of the so-called God particle, but in Pakistan the silence was deafening. Imagine a world where a merchant of death is rewarded while a scientific visionary is disowned and forgotten. Abdus Salam, Pakistan's only Nobel laureate, the first Muslim to win the physics prize, helped lay the groundwork that led to the Higgs boson breakthrough. And yet in Pakistani schools, his name has been erased from the textbooks. That's because Abdus Salam, who died in 1996, was a member of the Ahmadi sect, considered heretics by the Sunni majority, and barred by an act of parliament from even calling themselves Muslims. In sharp contrast, another Pakistani physicist, the infamous A.Q. Khan, a Sunni, is lionized as the father of his country's atomic bomb, even though he's confessed to spreading the technology to some of the world's most dangerous regimes, including Iran, North Korea, and Libya. Abdus Salam is officially forgotten in his own country, but his life's work lives on, a quantum leap towards understanding our universe. That's it for tonight's program. Meantime, our inbox is always open, amanpour@cnn.com. Thanks for watching, and goodbye from New York. सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को बना। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई, लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। एडी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और वो ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं, तो उसका तरीका मैंने फुटपाथ पे खड़ा रहकर भीख मांगी।
थोड़ी मिली लेकिन ठीक मिली। दूसरा ये मैंने उसूल बनाया कि जिंदगी भर सादगी रखूंगा, कपड़े एक ही किस्म के पहनूंगा और इंसानी नाते काम करूंगा। एक आदमी ना पढ़ा लिखा है, ना इनके पास पैसा था, लेकिन पैसा भी आता गया, लोगों ने मदद भी की, अल्लाह मियाँ ने मदद की। ये जो कुछ भी है आज अल्लाह पाक की मदद की वजह से हम हैं। हमारे ईदी साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हुए कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को सही तालीम दे सके। मुझे मेरी बीवी अल्लाह ने बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया और आज दिन तलक के साथ दे रहे। 375 सेंटर है, सेंटरों में चूल्हे रखे, चूल्हे में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। ये बच्ची बीमार मिली थी, 1 साल की थी और अभी ये 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, लेकिन है ना इसमें आखिरी सांस था तो ये बच गई, तो इसका नाम अल्लाह बचा ही रखा है हमने। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिन में 8-10 औरतें जवान घरों से नाराज होकर आ जाए। अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी। ये गुलाम की गुलाम, उनकी सारी मेहनत करे, खिलाए पिलाए, थोड़ी सी भूल हो जाए तो थप्पड़, फिर घर से निकाल देना। फिर ये मजबूर होकर मेरे पास आती हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे लेकर। हम इनकार नहीं करते। घरों में बूढ़ों की इज्जत नहीं है। तालीम याफ्ता हो गए तो इंसान नहीं बने। निकाल देना। रोज के रोज 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुंचते हैं। ईदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया, ना उनको घर बनाने की तमन्ना है। सारा दिन नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात नीचे बैठे रहते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। Since I have come to live in Karachi, I came to know very much about this well-known and noble person and sympathizes with all people who are in trouble. Not only this, he provides shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते। हम कबीलों में, सिस्टम में बटे हुए हैं, फरका परस्तियों में बटे हुए हैं और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। हम इंसान नहीं बने। ईदी की एक बात अच्छी है कि कभी लड़ाई नहीं करता, किसी को जवाब पलट के नहीं देता और ना बदला नहीं लेता और उसको अल्लाह पे यकीन बोलते। मैं कभी शख्सी तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे जरूरत है मैं फुटपाथ पे खड़ा रह जाता हूँ। गरीब से गरीब भी मुझे पैसा देता है। जितने भी बाहर के NGO है ना, सब ने हमको ऑफर किया आप हमसे ग्रांट ले लो। बोलता था मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानियों से ग्रांट लूंगा और पाकिस्तानी मेरी मदद करेंगे, मेरे काम को पसंद करेंगे तो मैं काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब। टोटल इनकम 75 करोड़ रुपये। और कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कहीं से भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जो भी काम करते करें। पाकिस्तानी जैसी कौम दुनिया में कोई नहीं। थोड़ा सा हमारा सियासी, मजहबी, कबीला निज़म इसको छोड़ देना चाहिए, इंसान बन जाना चाहिए, इंसानी नाते काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनवर मकसूद है। मैं इस वक्त कराची में हूँ और आप लोग ऑरलैंडो में हैं। और आपका जो फंक्शन है, जो शाम है आपकी, वो अपना वालों की शाम है, डॉक्टर्स की। मतलब जितनी मोहब्बत का इजहार आप लोग इतनी दूर रह के पाकिस्तान से करते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हुए भी
उतनी मोहब्बत पाकिस्तान से नहीं कर सकते। हर साल आप ये मेला लगाते हैं, रिश्ते भी तय होते हैं आपस में, दुकानें भी सजाई जाती हैं और एक खुशी का समा होता है। मैं भी आ चुका हूँ एक मरतबा आपके फंक्शन में, मगर पाकिस्तान के हालात के बारे में, क्योंकि आप लोगों के पास फुर्सत नहीं है, आप सुबह से शाम तक हॉस्पिटल्स, फिर क्लिनिक्स, फिर घर में आना जाना लोगों का, इससे ज़्यादा मोहब्बत और क्या कर सकते हैं। मगर आप लोग वहाँ रहते रहिए और इसी तरह काम करते रहिए और खुश होते रहिए। बहुत बहुत मुबारक। अपना के लिए जो काम करते हैं अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर, उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और है ना, मैं चाहती हूँ अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे। इन लोगों ने सिर्फ शहर में नहीं, गांव-गांव में जाके लोगों के लिए काम किया है। लोग इनसे बहुत खुश हैं और इनके काम से लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा है।